देखो अभी अगर परसिस्टेंट है तो देन जस्ट एक बार एग्जिट करके एंट्री मार लो। ठीक है सर। KG is 7.728. FSC is 0.092. This vessel has got to be dry docked. Calculate the maximum trim by stern with which she should enter the dock so as to ensure a VGM of at least 0.3 meters on taking the blocks all over. We have to calculate the maximum trim with which she should enter the dock. Okay, so VGM मुझे less than equal to 0.3 मीटर चाहिए. So therefore सबसे पहले मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है, सो इनिशियल डेटा मैं निकाल लूंगा फ्रॉम द हाइड्रोस्टैटिक पर्टिकुलर्स using the displacement. So I'm just taking the data from the book only to save time. So MCTC is 210.47. LCF is 69.836. KM is 8.371. And high draft is 8.905. These are the values for the initial displacement 18820 picked up from the book. All right. My purpose is to first calculate the initial GM. That is what I want to calculate. So KM is 8.371. KG is given to me as 7.728. Therefore, GM solid is equal to 0.643. 0.643 meters. This is my GM solid initial minus the FSC given to me in the question. Gives me the initial GM fluid. Decimal 551. This is the GM with which I will enter the dock. I want a RGM or a VGM of 0.3 meters. So VGM required of 0.3 meters. That means the loss of GM permissible, that is allowed, this is the loss of GM which is allowed, which is permissible. So this is I'm using formula number 3. From 3, I'm going to go to 2, backward. So virtual loss is equal to P into Km1
upon W initial. .251 is equal to P into P is unknown, Km1 is also an unknown. So I will use whatever Km is available to me. This is the Km available, so I will use that upon W initial. Therefore, the P that I will now get will be an approximate P because I've used an approximate Km value. Yes, sir. So 564.308. This is my P that I'm getting. This is an approximate P. So therefore, to obtain an accurate P, I will use what is called as one cycle of iteration. We use one cycle of iteration. How do we obtain cycle of iteration? So W initial W1. Sir, minus P will give me W1. हाँ जी. सर मतलब P is directly proportional to B loss है, तो एक तरीके से P की ये मैक्सिमम वैल्यू होगी जिससे हम लोग मतलब उसको एक्सीड नहीं करेंगे तो हमारा VGM उससे ज्यादा नहीं होगा कभी लॉस. नहीं, बात वो नहीं आ रही. बात ये आ रही है कि जब मैं वाटरलाइन 2 से 3 पे जा रहा हूँ नीचे, जब Yes, मैं sir. नीचे जा रहा हूँ तो उस वक्त मेरी वाटरलाइन बदल रही है Yes, sir. और जैसे जैसे मेरी वाटरलाइन बदल रही है मेरा केएम भी बदल रहा है. ओके सर. अच्छा, KM की वजह से, अदरवाइज 0.3 मैक्सिमम लेके देन वी कैन डू द क्वेश्चन. अगर सर नॉर्म KM की वैल्यू अगर नहीं हो चेंज हो केएम तो. केएम 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 बदलता जा रहा है. अब मैं ओके कौन सर. सा केएम लूं? ठीक है सर. ओके ओके. वो लूं जिससे के साथ मैं अंदर आया था हाँ सर. या फिर वो लूं जब मैं टच करने वाला था उस वक्त का केएम? ओके सर. क्योंकि जब केएम बदलेगा तो मेरा जीएम भी बदल जाएगा. केजी कांस्टेंट है. GM भी बदले. हाँ सर. केजी मेरा कांस्टेंट है, इस बात में मैं बड़ा क्लियर हूं. ठीक बात है सर. लेकिन मेरा जीएम बदल रहा है उसकी वजह से. उसकी वजह से. ठीक है सर. इसलिए मैं ये सारी राम कहानी कर रहा हूँ जो करनी ओके पड़ सर. रही है मुझे. ठीक है, इज दैट ओके? सर ओके Anybody सर, has समझ गया. any थैंक यू. doubt in this? So W1 is equal to 18,820 minus 564.3. 18255.7. 18255. 692. हाँ जी, 692. decimal. कोई बात नहीं, एक ही बात है. डोंट वरी. 18255.692 आ रहा है, 0.7 आ रहा है, बोथ आर ओके. अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आइट्रेशन कर रहा हूं तो ये सारी चीजें निकालूंगा. तो MCTC1, I'm picking up the values from the book to save time. इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अब मैं निकाल रहा हूं चीजें सारी. 207.083 ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, इसलिए मैंने 1 1 लिखता जा रहा हूं ताकि डिस्टिंग्विश कर सकूं इसको इससे.
LCF1 70.011, KM1 8.33, kg is 7.728. So KM1 is 8.33, kg is 7.728. मैं ये रिपीट करता जा रहा हूँ, इस स्टेज पे आ गया हूँ. So GM1 solid is equal to difference of the two. How much is that? 0.602. 602. ओके, सो मैंने ये टच कर लिया है. अब मैं FSC1 पे आ रहा हूं. FSC1 is equal to FSC into W initial upon W1. Is the formula okay with everyone? Yes. Yes, sir. Okay. तो मैं उस पर वैल्यूज डालता हूँ. 0.092 into 18820 upon 18255.7. तो न्यू FSC1 कितना आता है? 0.095. 95. 0.095. Okay. Solid minus FSC1 will give me GM1 fluid. Will give me GM1 fluid. Zero point five zero seven. हाँ जी. 0.507. 0.507. So मैं इधर तक आ गया. But VGM required is 0.3. So loss of GM required is equal to तो ये ब्रैकेट में क्या लिखा है आपने सर? वर्चुअल जीएम. VGM required. ओके ये ओके. VGM required is 0.3. मैं ये रिपीट कर रहा हूँ, ये सारे स्टेप्स ऐसे ऐसे चल रहा हूँ टिक मार्क करता हुआ. तो लॉस ऑफ GM रिक्वायर्ड, ये वाला स्टेप मैंने डुप्लीकेट कर लिया. बेसिकली मुझे डुप्लीकेशन करनी है. आई एम डुप्लीकेटिंग everything. I'm repeating. Iteration is all about repetition. So that is what I'm doing. I am iterating. So इधर आ गया मैं. अब मैं इधर पहुंच गया हूं इस स्टेप पे. अब मुझे ये रिपीट करना है. 0.207 is equal to P1 into KM1 upon W initial. P1 I want to find. KM1 8.33. Are you with me? Is this okay with everyone?
सर 467.676 आ गया। P1 is 467 point, चलो 7 ले लेता हूँ, यानी कि अबाउट 100 टन का फर्क आ गया. Since this is the more accurate value, I stop at this. This is more exact or more accurate. So I stop at this. I draw a line ताकि मैं अपने आप को बता सकूं कि मैं इसके आगे नहीं जाऊंगा अब, क्योंकि इसके आगे मैं गया तो मैं सेकंड साइकिल में घुस जाऊंगा, which I don't want to do. So मेरी यहाँ पे मेरी आइट्रेशन खत्म हो जाती है. अब मैं नॉर्मल चीज में आ गया हूँ. मुझे चाहिए क्या विद अ मोर एक्यूरेट पी? मुझे चाहिए ट्रिम. ये मेरा P3 है, ये मेरा P3 है. So now I go to formula number 1. P is equal to TC in centimeters into MCTC upon LCF. This is my formula for P3. ये मैं P1 यूज कर रहा हूं. So MCTC1, LCF1. So 467.7 is equal to TC in centimeters into 207 0.083 upon LCF1. So calculate TC1 in centimeters. सर 1.581. नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया. सर कुछ डाउट है. अभी रुक जाओ, पहले मुझे खत्म करने दो, फिर मैं सब डाउट्स लूंगा. आई टेक एवरीथिंग. So same आ रहा है 158.113. 113. Correct. So many centimeters. So therefore, initial trim is equal to 158.113 centimeters is equal to 1.581 meters. ये समझ में आया कि नहीं? And this is the initial trim by Stern. All right. Now let's take up the doubts. सर यहाँ पे सर अपन ने जो ये फॉर्मूले में जो पी से किया था यूज पी से एक्यूरेट पी है सर. पी इज द एक्यूरेट पी. बट सर जो एमसीटीसी और जो एलसीएफ है ये सर अपन ने किया यूज अप्रोक्सीमेट वाला पी के हिसाब से. तो ये भी अपन सर this is the nearest one before I arrive at this. यस सर. So this is the one which I will use. अगर आप जब कह रहे हो कि मैं अगली साइकिल में चला जाऊं, हाँ सर. एंड फिर अब वो मेरा विशेष साइकिल है, वो मेरा एंडलेस, वो इन्फिनिटी तक चल सकता है. ओके सर. तो वो फिर आप कब रोकोगे? कहीं ना कहीं तो रोकना पड़ेगा आपको. यस सर. तो वो चक्कर है. Is that okay?
सर रियल में अगर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो तो ये साइकिल तो 2-3 बार रिपीट करना पड़ेगा नहीं, इटरेशन और एक ही बार, once only. That is the reason why we are time and again I'm repeating one cycle of iteration, only one. सर यदि सर में जो अपन ने ये निकाले ना, अपन ने वैल्यूज निकाली, मतलब पहले निकाल ली हैं, अगर मैं पहले ना निकालूं, पहले केवल मैं अप्रोक्सीमेट पी निकाल के छोड़ दूं और फिर जब एक्यूरेट पी आ जाए तब मैं ये सारी चीजें निकाल लूं तो भी चलेगा क्या? नहीं चलेगा। मतलब एक मिनट, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से कि भाई ये मैं बाद में निकाल लूं? हाँ सर, मतलब एक्यूरेट निकालने के बाद सर मैं मतलब वैल्यूज निकाल लूं, ये एमसीटीसी और एलसीएफ कौन सा पी यूज करके? ऐसा मतलब ये वाला पी सा करेंगे, ये 467.7 वाला है ना, इसको पी यूज करके W माइनस पी निकालूं और उस पे सर ये वैल्यूज निकालूं एमसीटीसी एलसीएफ का, तो इट विल बी। सर वो सेकंड साइकिल ऑफ आइटरेशन में घुस गया, वो नहीं चलेगा। अच्छा सर, वो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। तो ठीक है, और कुछ एनीबॉडी एल्स, एनी अदर डाउट अप टू हियर? सर ये जो अल्टरेशन हम लोग कर रहे हैं, ये हम लोग क्या ओनली व्हेन द टू कंपोनेंट इज नॉन अननोन रहेगा तभी हम करेंगे ना सर, हमेशा? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जब पी की वैल्यू हमें कंफर्म नहीं रहेगी कि हमें कौन सी वैल्यू लेनी है और केएम भी कंफर्म नहीं है उस केस में, तो हम पहले अल्टरेशन करना फिक्स है। तो अब बेसिकली नाउ यू हैव रेज्ड अ वेरी वेरी टेक्निकल इशू एंड नाउ वी नीड टू एड्रेस दैट। सो बेसिकली क्या है कि आई गो बैक टू माय ओरिजिनल स्टेटमेंट व्हिच आई मेड टू यू। अगर कोई क्वेश्चन हिंशिप का आता है, ठीक है, और वो लेके जाता है आपको कहीं पे भी, चाहे 3 पे लेके जाता है, चाहे 4 पे लेके जाता है, चाहे आरजीएम रिक्वायर्ड पे बोलता है, आप आइट्रेशन करोगे अगर हिंशिप का क्वेश्चन है तो। इसमें आपके कोई मन में डाउट नहीं होना चाहिए। ओके सर, ठीक है। तो द मोमेंट आपने पढ़ा हिंशिप का क्वेश्चन है, इमीडिएटली दिमाग की बत्ती जल जाए, भाई एंटेना खड़े हो जाना चाहिए, भैया आइट्रेशन करनी है। ठीक है। ओके सर। अब क्वेश्चन के वर्डिंग्स अच्छे तरीके से पढ़ो। अब उसमें लिखा हुआ है assume data remains constant, इमीडिएटली वो एंटेना वापस डाउन ले आओ मतलब कि नहीं करनी है आइट्रेशन। पी एग्जैक्टली आ जाएगा सर। वो पी एग्जैक्ट, यस सर। सो बेसिकली बस यही दो है और कोई वो नहीं है। तो आपके मन में कभी डाउट नहीं होना चाहिए कि मुझे आइट्रेशन करनी है या नहीं करनी है। मैं ये नहीं चाहता, मैं अब वो सिचुएशन से आपको बाहर निकालना चाहता हूँ। तो हर एक क्वेश्चन में ये मान के चलो हिंशिप का क्वेश्चन है, आइट्रेशन करोगे। अब जहां पे वो आपको ट्रम्प कार्ड दे देता है कि भैया एज्यूम कांस्टेंट, वहां पे मत करो, बाकी करो। ठीक है, इज दैट ओके? डज इट मेक सेंस? वो तो एक्चुअली हमें इससे भी क्लियर हो जाता है सर कि अगर पी अप्रोक्सीमेट है तो हमें करनी ही है। अगर अप्रोक्सीमेट नहीं है, वी आर नॉट यूजिंग केएम अप्रोक्सीमेट, केएम इज कांस्टेंट, इट मींस पी इज एक्यूरेट। बट बेसिकली आप यही चलोगे, मान के चलो। ओके सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी सर, एक और ये डाउट था सर, जो FSC 1 आप यूज कर रहे हो, दैट यू यूज FSC इनटू W इनिशियल बाय W1, तो सर कैन यू जस्ट एक्सप्लेन कि ये फॉर्मूला कैसे आता है सर? ये डेरिवेशन अब है नहीं हमारे सिलेबस में, क्यों? अच्छा, मतलब सर ये फॉर्मूला बस ऐसे रखना है कि यही है FSC इनटू W इनिशियल। बेसिकली क्या है कि ये जो है ना न्यूमरेटर, वो आपको अगर आपको याद हो सेकंड मेट वाला जो था आपका फॉर्मूला, FSC is equal to FSM divided by W. correct? So what is
FSM equal to. Correct? Yes sir, yes sir. सर वो थोड़ा कैमरा आपका इधर करेंगे सर, दिख नहीं रहा। sorry. I forgot. FSC is FSM upon W. So FSM is FSC into W. Yes sir, ठीक है सर. Right. तो ये basically FSM remains constant. तो FSM चला गया न्यूमरेटर में. So new FSC is equal to constant FSM, that is FSC into W initial upon the changed W, the W1. Yes sir, understand sir, understand. That is all. Okay, let us move ahead. अब ये कहता है at this maximum trim find the drafts forward and aft on entering the dry dock. ये हमने कल किया था क्वेश्चन. So ये ट्रिम है, ये मेरी इनिशियल कंडीशन है, राइट? सो मुझे ड्राफ्ट चाहिए. सो TA is equal to trim into LCF upon LBP 1.581 into LCF 69.836 divided by 143.16. So calculate TA. ये आती है इक्वल टू 0.771. So TF will be equal to trim minus TA. Is equal to 0.810. अब मुझे ड्राफ्ट चाहिए. हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट मैंने निकाला था इनिशियल 8.905 माइनस प्लस, फॉरवर्ड में माइनस होगा 0.810, आफ्ट में प्लस होगा 0.771 इज इक्वल टू ड्राफ्ट फॉरवर्ड ड्राफ्ट आफ्ट. is equal to 8.095, 9.676. This will be the draft forward and aft with which she will enter the dock at waterline number 1. सर इसमें टीए कैलकुलेट करने के लिए हम वो पहले वाला फॉर्मूला नहीं लगाते टीसी वाला, क्योंकि पी 0 होता है अराइवल पे, इसी वजह से ना सर. एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज इनिशियल ट्रिम इनशिप में हम हमेशा ट्रिम यूज करते हैं, टीसी नहीं यूज करते. इनशिप ऑलवेज. तो वैसे सर हम पी 0 होगा तो वो फॉर्मूला ही पूरा 0 हो जाएगा, फिर बिल्कुल वो 0 आ. देन ये कहता है नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, द ड्राफ्ट फॉरवर्ड एट विच द हेड वुड टेक द ब्लॉक. द ड्राफ्ट फॉरवर्ड दैट मींस क्रिटिकल इंस्टेंट पे, यानी कि वाटर लाइन 3 पे. P3 निकालना है सर सीधे. तो ये P1 मैं निकाल चुका हूं. This is the P for P3 for water line number 3.
This is the exact accurate P. So what is the displacement corresponding to this? W initial minus P1 will give me the virtual displacement. So the virtual displacement is equal to corresponding to this displacement. What is the hydrostatic draft? Since she's all over on the blocks at this stage, so this will be the draft forward, this will be the draft aft, and this will be the dock water height also. So this is the answer, the draft at critical instant. Is that okay? सर आप पर्टिकुलरली क्रिटिकल इंस्टेंट क्यों बोल रहे हैं सर? ये मतलब मैं क्रिटिकल इंस्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कहीं पे क्वेश्चन में अगर आपसे क्रिटिकल इंस्टेंट बोल दे सेम चीज को, तो मतलब आपको पता चल जाना चाहिए। इस क्वेश्चन में क्योंकि मैं बार बार अलग अलग वर्ड्स यूज कर रहा हूँ ताकि आपको कोई क्वेश्चन मतलब एक ही चीज पूछ रहा है लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। दिस इज द ड्राफ्ट एट विच द हेड वुड टेक द ब्लॉक। What is that? That is critical instant. Which waterline are we talking about? We are talking about waterline 3. It is also the same waterline at which the critical period ends. Agreed or not? Yes, sir. तो ये इसलिए मैं ये अलग अलग वर्ड्स यूज कर रहा हूँ। ठीक है? Is that okay? And the last part, the fall in waterline between aft taking blocks and forward taking blocks. अब ये आप मुझे बताओगे। Fall in waterline between aft taking the block and forward taking the block. बताओ भाई। सर aft draft माइनस जो हाइड्रोस्टेट ड्राफ्ट निकाला है रिपीट इस पे P3 पे। करेक्ट। ड्राफ्ट इनिशियल ड्राफ्ट माइनस P3 का ड्राफ्ट है वो फॉलिंग टाइड है। डॉक वाटर हाइट at 2 minus डॉक वाटर हाइट at 3। हमेशा मैं ये बार बार यही लिख रहा हूँ तो ये वर्ड्स यही यूज करने हैं आपने। डॉक वाटर हाइट at 2 is initial draft aft 9.676, dock water height at 3 8.712. Is this okay? ठीक है, is this okay? Yes sir. Yes sir. So ये हमारा मैराथन क्वेश्चन खत्म होता है। अब इसमें मैं कई चीजें आपके साथ में पहले रिपीट कर चुका हूं, बार बार उसी को रिपीट करे जा रहा हूं ताकि यू गेट यूज्ड टू यू नो द वेरियस वर्डिंग्स ऑफ इट। ओके ठीक है, तो वर्डिंग्स बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके लिए। सो एक बारी अब क्वेश्चन नंबर 96 को लिखना शुरू करो। अब इसकी प्रैक्टिस करो, बेशक नकल करके करना, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज, बट गेट द स्टेप्स करेक्ट। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, इसको लिखो।
idea is to get used to these kind of questions. ना बड़ी लेंदी हो जाते हैं, but एक बारी used to हो जाओगे आप, so then life will be simpler. सर फॉर्मेट जैसा आपने लिखते हो व्हाइट बोर्ड पे सर, वैसा ही लिखना है या हम स्टेप बाय स्टेप भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं? Step by step भी लिख सकते हो, whichever you find comfortable. I am okay with it. You want to use your format, I am okay with it. I've got no issues. मेरे को ये ज़्यादा आसान लगता है, बट अगर आपको कोई और चीज़ आसान लगती है, प्लीज यूज इट. नो इश्यूज ऑन दैट. I've got no problem. ओके सर एमएमडी में कौन सा यूज करना है? कोई भी मेथड यूज कर लो यार, आपको कोई चिंता नहीं है. जो हम कर रहे हैं वैसे ही आंसर वही निकाल देना, ठीक मेथड यूज करके. ये मत करना कि पूछा वाटर लाइन 3 है, आप चल पड़े कहीं और 4 पे जा रहे हो, अनस्टेबल कर रहे हो, वो कर रहे हो, वो मत कर देना बस. सर ये जो वाटर लाइन कॉन्सेप्ट है, वी कैन राइट इन द एमडी एग्जाम एज वेल, नो सर? वाटर लाइन 2, वाटर लाइन 3. नो इशू, इट्स एक्सेप्टेबल. ओके सर, ओके सर. बट वो सर फिगर बना के आई थिंक वहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं, दिस इज वाटर लाइन 1, वाटर लाइन 2, तो आसान हो क्लियर हो जाता है, जाएगा. तो क्लियर हो जाता है एकदम. पिछले 24 साल से तो चल रहा है वाटर लाइन का कॉन्सेप्ट, ठीक है. तो अभी तक कोई रिजेक्शन आई नहीं है और इंशाल्लाह आएगी भी नहीं. एक्चुअली चक्कर क्या है कि ये वाटर लाइन का कॉन्सेप्ट वाज टॉट टू अस बाय कैप्टन रेवारी एंड कैप्टन जोसेफ. इन्होंने जब हमारी क्लासेस ली थी ना, तो ये 80s 90s में जब पढ़ाते थे हमें, तो दे स्टार्टेड दिस ऑफ वाटर लाइन्स बिजनेस. So then I caught on from there only. Others have not continued, the other institutes and all that. That's okay. That's fine. I just like it because I just find it very simple to comprehend. और एक बार ये उसको comprehend कर लो तो फिर कोई भी question मुझे डाल दो तो एकदम बैठ जाता है दिमाग में. So that's the reason why. सर वही कर रहा था कि अगर हम वाटर लाइन 2 and 3 लिख के आते हैं, अगर कोई दूसरा सर्विस चेक कर रहा है, बट he'll be accepting. They're accepting it. Because they all have been, over the years, they've all got to know. ये हाँ भैया यही करो. यस सर, ये आसान है सर. ये तो इट्स वेरी इजी, बहुत आसान हो जाता है इससे. लाइफ इतनी सिंपल हो जाती है सर, ऐसा भी समझ आ जाती है. हाँ. तो जब आप जहाज पे जाओ, मुझे तो कई फोन आते हैं वो जहाज से, सर ड्राई डॉक कर रहा हूँ अभी, वही आपकी सारी वाटर लाइन्स याद आ रही हैं और एकदम टक करके सब कुछ पता चल जाता है कि हो क्या रहा है. और अब मैं वो कर पाता हूँ कोरिलेट. लेकिन मैं जब जहाज में लोगों को बोलता हूँ तो इनको समझ नहीं आती कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ. तो आई एम ओके, आई एम वेरी हैप्पी, आई हैव अंडरस्टूड, सो इट्स ओके. यस सर, दैट इज हाउ इट गोज बेसिकली. इस कॉन्सेप्ट में क्या है कि the second mate who is on the aft stations, right, he will be the first guy to know when the critical period has commenced. Can anybody in the class tell me why? The second mate on board who's on aft stations will be, while dry docking, अंदर आ रहा है जहाज, he'll be the first guy to know that critical period has commenced. Why? सर क्योंकि आफ्ट ब्लॉक से शुरू होगा ना सर, आफ्ट ब्लॉक पे जब बैठेगा जहाज. नहीं, लेकिन सेकंड मेट तो ऊपर वहाँ पे है ना, टॉप डेक पे बैठा हुआ है. टॉप वाटर राइट पीछे का गिरेगा, उससे पता चलेगा. करेक्ट, बिल्कुल सही. तो ही इज द गाय. वो जब आप डॉक साइड पे देखते हो एक स्केल नजर आता है. यस एक स्केल नजर आता है डॉक साइड. यस सर, आता है सर, आता है सर. पेंट वेंट लिखा हुआ डॉक पे, जी. राइट. तो उधर में वो देख रहा है. अच्छा, सपोजिंग मेरा ड्राफ्ट 10 मीटर है, अभी वहां पे पानी 15 मीटर चल रहा है, तो वो देख रहा है 15 का 14 हुआ, 13, 12, 11,
10:30, 10. He'll be the first guy to see कि वो 10 हुआ है. कैप्टन भी पूछते रहता है सर उससे. ये मुझे नहीं पता पूछता कि नहीं पूछता, मेरे जहाज में तो नहीं पूछ रहा था. तो you as a second mate will report to the bridge aft has touched the block. So if you are the third mate on the bridge, you will write down in your maneuvering log at so and so time aft touched the block. And this is the most accurate reading. इससे कोई और ज्यादा accurate हो नहीं सकता. Agreed? Yes sir. Agreed sir. इससे ज्यादा कोई accurate हो नहीं सकता. So second mate is the first guy who will get to know. और वो बताएगा ब्रिज को, रिपोर्ट करेगा. और ऊपर ब्रिज में आप मैनूवरिंग लॉग में थर्ड मेट लिख लेता है भाई आफ्टर हैज टच्ड. नाउ द मीट फॉरवर्ड, उसने पहले ही प्री कैलकुलेट किया हुआ है द फॉरवर्ड ड्राफ्ट एट विच द हेड वुड टेक द ब्लॉक. तो जब वो आगे का ड्राफ्ट पड़ेगा, डॉक वाटर नहीं ड्राफ्ट, जब उसने आगे देखा ड्राफ्ट सपोजिंग 6.5 or whatever 6.5 आया, he'll say forward has touched the block. वो फॉरवर्ड में उसने रिपोर्ट कर दिया ब्रिज को, ब्रिज ने लिख लिया. अब जब स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट आएगी, टाइम शीट जो डॉक देता है, उसमें आप चेक कर लेना, आपका कंपेयर कर लेना, उसको डॉक को बता देना भैया ये था मेरा टाइम एक्चुअल एग्जैक्ट, तुम क्या लिख रहे हो. So that's how the things go. So then the dry dock will know, yeah, they are keeping a track of this also. Then they'll be very, they'll be careful. तो अदरवाइज ड्राई डॉक में बहुत उल्लू बना देते हैं जहाज वालों को, तो उल्लू ऐसा बनाते हैं पूछो मत, छोटी छोटी चीज़ों पे, और बिल लेके आ जाएंगे आपको सीधा. ड्राई डॉक में बिल्स मल्टीप्लाई वेरी फास्ट, सीधा $1000s में चलता है मामला. ठीक है, ऑलराइट, चलो लेट्स स्टॉप हियर. चलो बाय. प्लीज रिवाइज दिस क्वेश्चन 96. ओके.